Hello friends, welcome to Top Level Study. I am Sanjay, ex-General Indian Air Force. Let us start the video with a very simple motivational thought. Winners don't do different things, they do things differently. विजेता अलग चीज़ें नहीं करते, वो चीज़ों को अलग ढंग से करते हैं. So friends, if you want to be a winner, try to do the things in a different way. In a different way मतलब अगर किसी चीज़ को लोगों ने ट्राई करके सक्सेस नहीं हुए हैं, दैट मीन्स कि उन्होंने जो तरीका अपनाया था उस तरीके से अगर आप भी करोगे तो आप भी फेल्यूर होंगे. सो उस तरीका को नहीं अपना के उस तरीकों में आप चेंज कीजिए, देन यू विल बी डेफिनेटली ए विनर. सो फ्रेंड, with this motivation, let us move forward. In this video, I'll cover little bit about me, ex-serviceman career choice, strategy to crack any competitive exam, and finally, last few words. Although this video is specially made for ex-servicemen, still this video will be very useful for all those who are preparing for any competitive exam. So friend, please watch the video till the end. So friends, I am from Odisha, Cuttack district, and my mother tongue is Odia. So I'll speak in Hindi and English, but Hindi मेरा इतना अच्छा भी नहीं है. Please cooperate and try to adjust with that. Okay. So जब मैंने I was in Air Force and I served Air Force for 20 years. In the final phase, I planned to quit Air Force, and at that time I was suffering from cervical problem, and I remember when I started solving math problems, I was feeling giddiness. मुझे चक्कर आता था क्योंकि एक तो मुझे सर्वाइकल प्रॉब्लम था. सेकेंड, आफ्टर ए लॉन्ग पीरियड, आफ्टर ए लॉन्ग गैप, दैट इज 20 years की पढ़ाई भी छूट गया था. अब पढ़ाई शुरू करना था. तो anyhow, but slowly I recovered from that, and I carried on my preparation. उस समय तो एक चीज़ और है, उस समय मुझे सिलक्स, रीजनिंग में सिलक्स वर्ड ही मेरे लिए नया था. डाटा सफिशिएंसी मेरे लिए नया वर्ड था. ऐसे बहुत सारे, क्योंकि मेरा जब मैट्रिक है 1992, उस समय ये सब तो वर्ड्स था ही नहीं. तो आप लोग सोच सकते हैं कि हमारे लिए कितना डिफ़िकल्ट रहा होगा, स्पेशली मेरे लिए और जो भी मेरे एक्स सर्विसमैन हैं उनके लिए. बट with proper planning and proper strategy, today I have cleared many exams like CHSL 2017, CGL Tier 2 2018, DMRC Junior Engineer, ESIC 2019,
SBI Junior Associate 2019, IBPS Clerk 9 and selected for UCO Bank. CHSL 2017 में मैंने फिर टायर 1 क्लियर किया, टायर 2 क्लियर किया, बट आई डिड नॉट गो फॉर टाइपिंग टेस्ट. CGL 2018 में आई क्लियर टायर 2 and I didn't go for descriptive test. ESIC 2019 I cleared everything, but I did not join. SBI Junior Associate 2019, although I cleared, I have been offered a place of posting. I have been offered a place of posting जहाँ कि मैं जाना नहीं चाहता था, and I didn't join that. So friends, ये सब बातें मैंने इसलिए बता रहा हूँ कि if I can do it, then why can't you? है ना? If I can do it, why can't you? इसलिए मैंने ये सब बता रहा था. बाकी मेरा कोई पर्पस नहीं था कि मैंने ये एग्ज़ाम क्लियर किया, मैंने वो एग्ज़ाम क्लियर किया. सिंपली मैंने भी आप जैसे एक एक्स सर्विसमैन हूँ, और अगर मैं क्लियर कर सकता हूँ तो आप भी क्लियर कर सकते हैं. और जिसके वजह से मतलब जिस चीज़ से मैंने जो प्लानिंग और जो स्ट्रैटेजी अपनाया था, वही चीज़ मैंने आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ. So our next topic is ex-serviceman career choice. Whether you are retired or planning to take retirement and you want to join a government job as a second career option, then there are many choices for you, like banking, railway, DRDO, SSC, Metro, FCI and many more. But it is you to decide in which sector or organization you want to join, considering many factors like future settlement plan, payment option, job profile, etc. Once you have taken the decision, now comes strategy to crack any exam, which is the most important topic covered in this video. स्ट्रैटेजी में 6 पार्ट्स है. फर्स्ट इज गोल सेटिंग, देन नो योर एग्जाम, देन प्लानिंग, देन एग्जीक्यूशन और एक्शन, देन टेस्ट योर सेल्फ, देन रिविजन. हम एक एक करके ये सब देखेंगे और जानेंगे कि ये सब क्या है और इस 6 स्टेप से हम कैसे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर कर सकते हैं. Goal setting or aim is the first and foremost step in the strategy, because without a definite or specific goal you will reach nowhere. And if I am not wrong, the common goal of almost everybody is to get a government job. Yes or no? Yes. And you might be knowing few organizations also offer pay protection to ex-servicemen. So our ex-servicemen should try to grab this opportunity. And while setting your goal, remember one thing: goal should be always definite, specific and realistic. Realistic means it should be achievable, right? And to achieve this goal,
what you have to do? Naturally, you have to clear competitive exam. You have to appear for various exams. And with this competition exam, our next step comes, which is KYE or Know Your Exam. Know Your Exam means क्या है? Know Your means that is to know the phases or pattern of exam. For example, mainly banking exams जिसमें 3 स्टेजेस होते हैं जनरली, प्रीलिम, मेंस एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ओब्लिक LPT. एंड समटाइम्स फॉर PO के लिए इंटरव्यू भी होता है. तो दिस इज कॉल्ड पैटर्न ऑफ एग्जाम. एंड वेदर दिस इज ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा. ऑनलाइन होगा मीन्स CBT, दैट इज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, और ऑफलाइन में होगा मीन्स पेपर पेन मोड. सो ये रहा हमारा, यू शुड ऑलवेज नो कि व्हाट शुड बी द पैटर्न ऑफ योर एग्जाम. नेक्स्ट कम्स सब्जेक्ट्स. जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा उसमें क्या क्या सब्जेक्ट आएगा, यू शुड नो. यू शुड बी वेरी मच क्लियर अबाउट दिस. जैसे कि मोस्ट ऑफ द बैंकिंग प्रीलिम एग्जाम में क्या क्या सब्जेक्ट आता है? इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग एबिलिटी. और जैसे मेंस में ये क्या हो जाता है, एक जनरल अवेयरनेस सब्जेक्ट जुड़ जाता है. थर्ड में क्या है, यू शुड नो द डिटेल्ड सिलेबस. डिटेल्ड सिलेबस मीन्स हर एक सब्जेक्ट कौन कौन सी टॉपिक को कवर करता है. तो आपको ये 100% पता होना चाहिए कि हर सब्जेक्ट, जैसे क्वांट हो गया, क्वांट क्या क्या कवर करता है, उसके अंदर सब सब्जेक्ट या टॉपिक. जैसे इन सम ऑफ द नोटिफिकेशन जो भी हमारा कोई भी एग्जाम होगा, कोई भी उसका जो नोटिफिकेशन निकलता है उसमें कभी कभी इंडिकेटिव सिलेबस भी देता है, बट दैट इज नॉट कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस. सो यू शुड नो कि व्हाट विल द डिटेल्ड सिलेबस. एंड देन comes miscellaneous details about your exam. What this means? This means कि और बाकी कुछ जानकारियाँ, जैसे कि एग्ज़ाम में आपका नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं है, अगर है तो कितना है. सेकेंड थिंग, एज लिमिट, उस एग्ज़ाम को आप अपियर करने के लिए आपका एज लिमिट है कि नहीं है. थर्ड थिंग, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है या स्टेट गवर्नमेंट जॉब है. एंड और एक चीज़ भी हम जोड़ सकते हैं इसके, कि इसका पोस्टिंग जोन कहाँ कहाँ पे है, कि वेदर यू आर लायबल टू सर्व एनी प्लेस इन इंडिया, और इट इज़ स्पेसिफिकली मेंशन्ड कि इन दिस जोन और इन दिस स्टेट यू विल गेट योर पोस्टिंग. तो ये सब आता है मिसलेनियस डिटेल्स में. तो ये नो योर एग्जाम में हम इतना ही कवर करेंगे. नेक्स्ट देखेंगे कि हमारा क्या आता है नेक्स्ट में, प्लानिंग. और जैसे भी देख रहे होंगे आप कि प्लानिंग में एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ. Planning is the most important and crucial aspect of the strategy, because as you might be seeing कि लिखा हुआ है, most people don't plan to fail, they just fail to plan. मतलब अधिकांश लोग फेल के लिए
प्लान नहीं बनाते हैं, प्लान बनाने के लिए वो फेल हो जाते हैं, मतलब प्लान बना नहीं पाते हैं। सो इन स्ट्रैटेजी दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड क्रूशियल एस्पेक्ट। प्लानिंग में हम पहले क्या देखेंगे, इसमें भी वही एक चीज़ आ रहा है कि लाइक नो योर एग्जाम, KYS, नो योर सेल्फ। नो योर सेल्फ मीन्स क्या है कि आप अपने आप को जानो, आप अपने आप को जानो। इसका मतलब कहना मतलब कि हर इंसान के पास कुछ स्ट्रांग एरिया होते हैं और कुछ वीक एरिया भी होते हैं। स्ट्रांग एरिया को हमें और स्ट्रांग करना है और वीक एरिया को स्ट्रांग बनाना है। व्हाई आई एम टेलिंग कि नो योर सेल्फ, बिकॉज इन दिस वर्ल्ड यू आर द बेस्ट जज ऑफ योर सेल्फ। बिलीव मी, यू आर द बेस्ट जज ऑफ योर सेल्फ। आप अपने आप को सबसे दूसरों से सबसे ज़्यादा बेहतर जानते हो। सो फर्स्ट ऑफ थिंग, बिफोर डूइंग एनी प्लानिंग, यू जज योर सेल्फ, what are all the strong areas of yours and what are all the weak areas. Then comes in planning, number 2 में आता है resources planning. What is resources? कि क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए होता है। हमने देखा पहले कि एग्ज़ाम देना है तो एग्ज़ाम के बारे में हमने जाना। अब प्लानिंग में आए, प्लानिंग में हमें देखा कि नो योर सेल्फ। अब हमने डिसाइड कर लिया कि यार हाँ, मेरे अंदर ये कमियां है या मेरे अंदर ये स्ट्रांग पॉइंट है, मेरा क्वांट स्ट्रांग पॉइंट है, मेरा रीजनिंग वीक पॉइंट है, व्हाट एवर इट इज। नाउ अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ हमें बढ़ना है प्लानिंग में कि रिसोर्सेज प्लानिंग। रिसोर्सेज प्लानिंग में आपको क्या क्या चाहिए, जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, ये चीज़ मैं कह रहा हूँ कि मैं जो जितना भी एग्ज़ाम क्लियर किया है आज तक, मैंने कोई कोचिंग नहीं लिया है। सो कोचिंग भी मेरे हिसाब से कोचिंग की ज़रूरत भी नहीं है। सो बिना कोचिंग लिए तो आपको क्या रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ेगा? रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ेगा, पहला चीज़ तो एक ही है कि स्मार्टफोन, और बेटर इफ यू हैव वन PC और लैपटॉप। सेकेंड चीज इंटरनेट। थर्ड स्टडी मटेरियल। यस, दिस इज इम्पोर्टेंट, ऑल आर इम्पोर्टेंट। स्टडी मटेरियल, दैट इज बेस्ट बुक्स। ऑनलाइन सोर्सेस तो बहुत है, होने के बावजूद जो मज़ा पढ़ाई में है, जो मज़ा किताब से पढ़ने में है, वो आप कंप्यूटर स्क्रीन या मोबाइल स्क्रीन से वो मज़ा नहीं मिलेगा। सो कुछ बेस्ट बुक्स, मेरा अगले वीडियो में जब मैं स्पेसिफिक किसी एग्ज़ाम के बारे में स्ट्रैटेजी या कुछ बताऊंगा, तब मैंने बेस्ट बुक्स हर एग्ज़ाम के लिए मैं बताऊंगा। और ऑल्सो यू कैन सर्च यूट्यूब ऑल्सो, एंड at least of all subject you should have minimum one book. For example, for quant you should have one book at least, for reasoning you should have at least one book, like that. So minimum जो चीज़ें है, या तो एक स्मार्टफोन होना चाहिए, सेकेंड उसमें आप एक नेट पैक होना चाहिए, थर्ड आपके पास स्टडी मटेरियल, या जिसको भी मैं बोलता हूँ कि बेस्ट बुक्स हर सब्जेक्ट से एक एटलीस्ट होना चाहिए। अब तो रिसोर्सेस हो गया, अब क्या करना है? रिसोर्सेस भी हो गया और हमने अपने आप को जज भी कर लिया। अब प्लानिंग का थर्ड स्टेज आता है टाइम मैनेजमेंट। यस, अगेन दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ प्लानिंग। एज यू नो, इन स्ट्रैटेजी प्लानिंग वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल एस्पेक्ट था। अब इन प्लानिंग टाइम मैनेजमेंट
is the core or heart or whatever you tell. It is the most important aspect of planning. One thing I'll tell you कि ये टोटली डिपेंड करता है आपके ऊपर. टाइम मैनेजमेंट जैसे कि आपके पास कितना टाइम है. अगर आप अभी सर्विस नहीं छोड़े हैं तब आपको कम टाइम मिलेगा. अगर आप रिटायर हो चुके हैं तो आपको फुल टाइम मिलेगा. अगर कहीं आप पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो या कोई प्राइवेट कंपनी में या कहीं जॉब कर रहे हो, पार्ट टाइम जॉब टाइप का कर रहे हो, तब भी आपको कम टाइम मिलेगा. सो as per your convenience and availability of time, you must do a time table. What? Time table. I'll show you कि मैंने कैसे बनाया था, क्या बनाया था. I'll show you later on in this slide. And that timetable should be, again that timetable should be very practicable. Practicable in the sense जिसको आप 100% फॉलो कर सकते हो. 100% फॉलो कर सकते हो. फर्स्ट यू थिंक अबाउट कि आप एक पर डे आप कितने आवर्स निकाल सकते हो. ऑनेस्टली यू थिंक. ज़रूरत पड़ेगा तो कहीं कोई कुछ जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम नहीं है उसको आप कर्टेल कर सकते हैं. और इसलिए ऑनेस्टली यू थिंक, you take one day to think how much time you will get in one day out of 24 hours. And if you are a beginner, in my view, give at least 8 hours per day and for 6 months. How much? For 6 months. Honestly speaking, 6 months is sufficient to crack any exam. 6 months is sufficient to crack any exam. इस टाइम मैनेजमेंट में मैंने एक चीज़ कहा कि टाइम टेबल बहुत ज़रूरी चीज़ है. इस टाइम टेबल मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरा जो टाइम टेबल था ये था. देखिए ये था न्यूमेरिकल एबिलिटी, ये इंग्लिश लैंग्वेज, ये रीजनिंग एबिलिटी. और इसमें मैंने एक चीज़ और दिखाता हूँ. ये तो हो गया कि ये मैंने किसी प्री एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन किया था, सो दैट्स वाई था नहीं. बाकी आप देख सकते हो. और हम नेक्स्ट चलते हैं कि नेक्स्ट स्लाइड में कुछ और है कि ये हो गया. आप मुझे पढ़ना क्या है, जैसे मैंने जो बताया था कि सब्जेक्ट क्या क्या आता है. न्यूमेरिकल एबिलिटी, इंग्लिश लैंग्वेज, रीजनिंग एबिलिटी. और उसके बाद मैंने बताया था कि डिटेल्ड सिलेबस या क्या क्या टॉपिक कवर करता है. फॉर एग्जांपल क्वांट या न्यूमेरिकल एबिलिटी में नंबर सीरीज, QE मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सिंप्लीफिकेशन ओब्लिक अप्रोक्सीमेशन, DI, एरिथमेटिक, DS, डाटा सफिशिएंसी, मिसलेनियस. और इंग्लिश लैंग्वेज में इसे आप देख सकते हो बाद में. नेक्स्ट देखते हैं क्या है. नेक्स्ट देखिए ये रहा. यस, दिस इज द एक्चुअली टाइम टेबल. ऐसा आप एक सीट ले सकते हैं, उसको लैमिनेट कर सकते हैं. लैमिनेट करने के बाद देखिए जैसे ये रहा डे. और डे ये देखिए मेरा कब का है, 9 जून 18 का दिख रहा है. ये 10 जून, 11 जून, लाइक दैट 16 जून. अब मेरे हिसाब से कितना टाइम मैं कितना कहाँ से कहाँ तक दे सकता था. लाइक 700 टू सुबह 7 बजे से 9 बजे तक, फिर 9 से 10 1 घंटे की ब्रेक, 10 से 12 फिर आधा घंटा ब्रेक. देखिए यहाँ पे देखिए 2:30 बजे से 5:30 तक 3 घंटे का ब्रेक है. इसलिए आराम से आप पर डे 8 से 9 घंटे निकाल सकते हैं. इवन अगर आप इन सर्विस भी हैं
तब भी आप 5 to 6 आवर्स निकाल सकते हैं। एनीवे, अब इसको ऐसे ही फिर आगे मैं बताऊंगा इसमें करना क्या है। फिर नेक्स्ट स्लाइड को चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में ये दोनों को मैंने कंबाइन करके आपको दिखाया है। अब ये देखिए, ये दोनों कंबाइंड है। अब देखिए, ये थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करूँगा, थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, बट हैव पेशेंस एंड यू जस्ट फॉलो इट एंड आई गारंटी यू विल गेट सक्सेस। सी, हियर 7 से 9 2 घंटे, यहाँ पे 2 घंटे 4 घंटे, यहाँ पे भी 2 घंटे 6 घंटे, यहाँ पे 1.5 घंटे 7.5 घंटे, यहाँ पे 1.5 घंटे 9 घंटे, यहाँ पे 2 घंटे 11 घंटे। सी, मैं तो 11 आवर्स पर डे निकाल सकता था। 11 आवर्स से देखिए मैंने किसको कितना टाइम दिया है। यहाँ पे सी, न्यूमेरिकल एबिलिटी के लिए 4 आवर्स, इंग्लिश के लिए 2.5 आवर्स, और रीजनिंग के लिए 2.5 आवर। ऐसे हो गया 4, 5 4 9, और मॉक टेस्ट के लिए 2 घंटे 11 आवर्स। सी, आप जितना टाइम निकाल पाएंगे 24 आवर्स में, आप उस टाइम को आप कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है उसमें आपको डिवाइड करना है। समझ रहे ना कि अगर आप दिन में, जैसे मैंने ये एग्जांपल दिखाया कि 11 घंटे मैं स्पेयर कर सकता था, और उस 11 आवर्स को मैंने डिवाइड किया है। क्वांट के लिए 4 आवर्स, इंग्लिश के लिए 2 आवर्स 30 मिनट, रीजनिंग के लिए 2 आवर्स 30 मिनट, और मॉक टेस्ट एंड जीके 2 आवर्स। और देखिए इसमें क्या लिखा है, प्रैक्टिस एटलीस्ट 1 मॉक टेस्ट पर 2 डे। आई अमेंड इट, फॉर 2 डे नहीं, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर प्री एटलीस्ट इट शुड बी फॉर 1 डे, एंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर मेंस एटलीस्ट 1 मॉक टेस्ट पर 2 डे। अब उसके बाद करना क्या है, उसके बाद देखिए जरूरी नहीं कि कोई बताते हैं कि सुबह 7 से 9 बजे तक ये पढ़िए वो पढ़िए, ऐसा नहीं है। आप उसके बाद टॉपिक वाइज फिर उस टाइम को सब डिवीजन कर लीजिए। जैसे कि मैंने क्वांट में जो 4 घंटे देना था मुझे, 4 घंटे में से मैंने दिया क्या, रिवीजन और नोट में 30 मिनट, नंबर सीरीज में 30 मिनट, ऐसे इसको मैंने सेपरेट कर लिया, और ये टोटल 4 घंटे हुआ। अब मैं क्या करता था, देखिए यहाँ पे देखिए 10 जून 2018 को पहले 7 से 9 देखिए मैंने क्या पढ़ा, क्वांट पढ़ा, और क्वांट में 7 से 9 नहीं, मैंने 7 से 12:30 तक क्वांट में क्या पढ़ा, नंबर सीरीज पढ़ा, सिंप्लीफिकेशन पढ़ा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा, और देन इंग्लिश में क्या पढ़ा, आरसी किया, क्लोज टेस्ट किया। अब जैसे ही मैंने क्वांट कर लिया, मान लीजिए उस दिन क्वांट का नंबर सीरीज कर लिया, सिंप्लीफिकेशन कर लिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर लिया, अब मैं क्या करूँगा, क्वांट का नंबर सीरीज के पास एक डॉट लगा दूंगा, देन सिंप्लीफिकेशन के पास एक डॉट लगा दूंगा, देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पास एक डॉट लगा दूंगा। इसका मतलब मेरा जो आज दिन का जो टारगेट था वो मेरा इसका कंप्लीट हो गया है। बाकी जो टाइम बचा है बाकी करना है। सेम थिंग इफ़ आई हैव, मतलब मैंने अगर इंग्लिश पढ़ा है, इंग्लिश में आरसी किया है, सो इंग्लिश कहाँ गया, इंग्लिश इधर और इधर आरसी में मैंने टिक मार दिया। देन क्लोज टेस्ट किया, क्लोज टेस्ट मतलब प्रैक्टिस में आ जाता है, मैंने प्रैक्टिस भी किया। अब इसका मतलब आप खुद अपना टारगेट डिसाइड कर रहे हो कि मुझे आज इतना कंप्लीट करना है। रिमेंबर वन थिंग, you have to make your own timetable yourself. I am repeating,
योर सेल्फ, आपको अपना टाइम टेबल खुद अपने आप को बनाना है। नॉन अदर दैन यू कैन मेक योर टाइम टेबल। मैंने बहुत सारे चैनल्स में मैंने ये बताते हुए देखा है कि 30 डेज स्टडी प्लान, 15 डेज स्टडी प्लान, तो वो थोड़ी ना आपको थोड़ी जानते हैं कि आपका वीक पॉइंट क्या है, आपका ग्रे एरिया क्या है, आपका स्ट्रॉन्ग एरिया क्या है। वो कैसे आपके लिए स्टडी प्लान बना सकते हैं। तो इसलिए माई सिंसियर एडवाइस इज डोंट फॉलो दोज, यू मेक योर ओन टाइम टेबल and you follow the timetable. One more thing, give more time to your weak subject or topic. And one more thing, every day you start your morning with that subject or topic in which you are good or कंफर्टेबल, सो दैट आपका माइंड फ्रेश रहेगा और आपको बोरिंग भी नहीं लगेगा। क्योंकि जब आप कोई टफ टॉपिक या कोई सब्जेक्ट पकड़ लोगे तो आपका फिर पूरा दिन खराब हो जाएगा। तो इसलिए बेटर यू स्टार्ट योर मॉर्निंग विथ जिस टॉपिक में या जिस सब्जेक्ट में आपका कमांड है। ओके, एक चीज़ और मैं टाइम टेबल के बारे में बताऊंगा कि आप एक बार टाइम टेबल बना ले तो मतलब सब्जेक्ट्स या जो भी टाइम टेबल बना ले तो उसमें आप ऐसा नहीं कि 2 महीने 3 महीने या 4 महीने स्टिक रहो, मतलब उसी में ही बस। आप ज़रूरत के हिसाब से टाइम टू टाइम इसमें आप चेंजेस भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अब आपके पास प्री एग्ज़ाम आ चुका है, प्री एग्ज़ाम के लिए आप 7 दिन एग्ज़ाम के लिए कोई भी एग्ज़ाम 7 दिन बाकी है, सो उस 7 डेज़ के लिए आप एक अलग टाइम टेबल बनाइए। ये तो आपका नॉर्मल रूटीन में जाएगा, ये जो टाइम टेबल मैंने दिखाया था। और लास्ट 7 डेज़ के लिए आप एक अलग किसी में, या जैसे मॉक टेस्ट में आप बढ़ा सकते हो टाइम, किसी और में टाइम घटा सकते हो, इस टाइप का आप चेंजेस भी कर सकते हो आपका ज़रूरत के मुताबिक। सो ये पूरा था हमारा टाइम मैनेजमेंट के बारे में। अब नेक्स्ट देखेंगे एग्जीक्यूशन ऑब्लिक एक्शन। जो हमने तो प्लान भी बना लिया, टाइम टेबल बना लिया, प्लान बना लिया, अब बस प्लान बनाने से तो काम नहीं होगा ना, उसको एग्जीक्यूट करना है। एग्जीक्यूट करना है मतलब उसको काम में दिखाना है, कि काम करके दिखाना है। इसमें आप मेटिकुलसली फॉलो द टाइम टेबल, मतलब 100% यू हैव टू फॉलो योर टाइम टेबल। एंड व्हाइल फॉलोइंग योर टाइम टेबल you focus on 2 aspects. एक तो फास्ट एक्यूरेसी, देन स्पीड। अगेन आई एम द सीक्वेंस में बता रहा हूँ, फास्ट एक्यूरेसी देन स्पीड। डोंट लुक फॉर स्पीड एट फास्ट, फोकस ऑन एक्यूरेसी। और एक्यूरेसी के लिए क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू बिल्ड योर कॉन्सेप्ट एंड ऑल बेसिक्स, फंडामेंटल्स और बेसिक्स ऑफ ऑल टॉपिक्स। यस, सो व्हाट टू डू फॉर एक्यूरेसी? यू हैव टू, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, आपका बेसिक्स क्लियर होना चाहिए। और इसमें एक चीज़ मैंने, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि क्लैप, follow clap. What is clap? Continuous learning and practice. C से continuous, L से learning, A से and, P से practice. That is continuous learning and practice. So learning को हमेशा जारी रखिए और प्रैक्टिस करते रहिए। With continuous practice, your speed will automatically increase.
एंड वन मोर थिंग आई टेल कि आप जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे ऑलवेज मेक नोट्स ऑफ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। सो जब भी आप पढ़ाई करते हैं हमेशा आप नोट्स बनाइए, आपका अपना नोट। क्यों मैं बता रहा हूँ, एक मैं अपना नोट आपको दिखा रहा हूँ। देखिए ये आइदर और केस, ये रिजल्ट रीजनिंग का सिलेक्स में आइदर और केस, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर, सम हट। सी फर्स्ट व्हाट आई डिड, सम नॉट। देन सेकेंड पेयर क्या होगा, सम के साथ में नो, देन सम नॉट के साथ ऑल। और उसके बाद देखिए यहाँ पे मैंने लिखा ऑल प्लस नो नॉट ए कॉम्प्लीमेंटरी पेयर। आप ऐसे अपना नोट बना सकते हैं हर सब्जेक्ट का। और ये तो जस्ट सैम्पल था, ये मैं बनाया था। मेरे पास सारे सब्जेक्ट्स का नोट्स है। नोट्स बनाना देखिए बहुत ज़रूरी है। तो ये था हमारा एग्जीक्यूशन ऑफ प्लानिंग। जो आपने प्लान किया था, टाइम टेबल किया था, उसको फॉलो करना है। और उसमें आपको क्लाप कंटिन्यूस लर्निंग एंड प्रैक्टिस ये फॉलो करना है। और ऑलवेज मेक नोट्स ऑफ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। मैंने एग्जाम्पल दिखाया कि कैसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को नोट्स बनाना है। देन 5th पॉइंट आता है हमारा टेस्ट योरसेल्फ। टेस्ट योरसेल्फ में क्या आएगा, अब आपने टाइम टेबल बना लिया और उसको एग्जीक्यूट भी करना स्टार्ट कर लिया, मतलब पढ़ना भी स्टार्ट कर लिए, प्रैक्टिस भी करना स्टार्ट कर दिए। नाउ कम्स टू टेस्ट योरसेल्फ। आपने कितना सीखा या कितना अभी तक पढ़ा है। नाउ टाइम हैज कम टू टेस्ट योरसेल्फ। एंड फॉर दिस मॉक टेस्ट इज द बेस्ट टूल। मॉक टेस्ट इज द बेस्ट टूल टू टेस्ट योरसेल्फ। मॉक टेस्ट के बारे में मैं थोड़ा सा बताता हूँ कि व्हाइल गिविंग मॉक टेस्ट क्या होता है। उसमें एक तो आपको रियल टाइम एग्ज़ाम का फ्लेवर मिल जाता है और आप एक्वेंटेड हो जाते हो। मुझे एक चीज़ मेरा याद है, जब मैं पहली बार फर्स्ट टाइम IBPS एग्ज़ाम देने गया था, जो साइड में आता है, अगर आप लोग बहुत सारे लोग भी बहुत सारे एग्ज़ाम दिए होंगे, तो राइट साइड में क्वेश्चन पैनल आता है। मुझे उसमें क्वेश्चन ढूंढने में मुझे टाइम लग गया। क्योंकि मैंने कभी मॉक टेस्ट उससे पहले नहीं दिया था और मैंने एक्वांटेड नहीं था। सो मॉक टेस्ट ज़रूरी है। एक तो मॉक टेस्ट देने से आपको अपना नॉलेज का भी तैयारियाँ कितना है वो पता चल जाता है, प्लस एक आप एक्वांटेड हो जाते हो कि आप एग्ज़ाम हॉल में आपके सामने जब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा कैसे आपको अप्रोच करना है। हाँ, मॉक टेस्ट बारे में ये चीज़ बता रहा था कि ऑलवेज कीप इन माइंड, डोंट थिंक अबाउट योर स्कोर यू गॉट इन दैट मॉक। ओके, सेकेंड थिंग व्हाट, डोंट थिंक अबाउट रैंकिंग और परसेंटाइल you got in that mock test. never see all this, see just, but इनको आप सोचना नहीं है, आप अपने दिमाग में हटा देना है। ठीक है, मॉक टेस्ट दिया, हाँ, करना क्या है, जब आपने मॉक टेस्ट कंप्लीट कर लिया, जो क्वेश्चन आप ड्यूरिंग मॉक टेस्ट जो क्वेश्चन आप स्किप किए थे उन सारे क्वेश्चन को करना है, मतलब डू द लेफ्ट ओवर क्वेश्चंस। और उस लेफ्ट ओवर को या तो आपको टाइम नहीं मिला या आप उस क्वेश्चन को कर नहीं पाए। टाइम नहीं मिला तब तो ठीक है, आप टाइम मैनेजमेंट भी सीखिएगा कि हाउ टू, मुझे कहाँ टाइम ज़्यादा लगा था। और अगर आप नहीं आता, अगर उस क्वेश्चन को आप कर नहीं पाए थे, सो दिस इज़ द पॉइंट टाइम, नाउ दिस इज़ द टाइम
you go back to the particular topic and revise and उसके कंसेप्ट के बारे में फिर दोबारा पढ़िए। ठीक है, मतलब ये मॉक टेस्ट एनालिसिस करने का एक तरीका है। इस 3 चीज़ों को आप पक्का ध्यान रखना कि स्कोर कोई दिक्कत नहीं, कम स्कोर आ रहा है, नो प्रॉब्लम, ठीक है ना, नो प्रॉब्लम है। रैंकिंग भी देखना नहीं है, बिकॉज रैंकिंग क्या होता है, जिस प्लेटफॉर्म से आप मॉक टेस्ट खरीदे हो या सब्सक्रिप्शन लिए हो, उसमें जितने लोग दिए होंगे उसी में आपका रैंकिंग पता जाएगा। और ना कि रियल टाइम एग्जाम में लाखों स्टूडेंट्स देते हैं, तो इसलिए डोंट थिंक अबाउट रैंकिंग एंड परसेंटाइल और ऑलवेज डू द लेफ्ट ओवर क्वेश्चन सर। अब मैं कुछ सजेस्टेड मॉक टेस्ट बताऊंगा जो इन माई व्यू वन ऑफ द बेस्ट वन है। एक तो अब मिनिमम 2 मॉक टेस्ट, दो किसी प्लेटफॉर्म का, कोई भी प्लेटफॉर्म हो, 2 मॉक टेस्ट आप सब्सक्राइब कीजिए। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि क्यों कह रहा हूँ बताऊँगा, और पहले मैं बताता हूँ कि फर्स्ट यू सब्सक्राइब इन माई सजेशन ओलिव बोर्ड, देन सेकेंड वन इज आइदर ग्रेडअप और टेक्स्ट बुक और फ्रॉम IBPS गाइड, एनी वन ऑफ देम। वाई आई एम टेलिंग कि ओलिव बोर्ड का क्वेश्चन अच्छे स्टैंडर्ड्स का होता है, और इनिशियली अगर आप ओलिव बोर्ड का ही करना स्टार्ट कर दोगे, या मान लीजिए आप बहुत कम स्कोर कर रहे हैं या बहुत कर नहीं पा रहे हैं, तब देन यू विल बी डिमोटिवेटेड। ओके, सो बट ओलिव बोर्ड इज द वन ऑफ द बेस्ट वन। आई हैव ऑलवेज फॉलोड ओलिव बोर्ड मॉक टेस्ट। एंड सेकेंड, ग्रेड ऑफ टेक्स्ट बुक IBPS गाइड, इसलिए कह रहा हूँ कि उनमें यस अच्छे क्वेश्चन स्टैंडर्ड तो अच्छे हैं ही, सारे में अच्छे स्टैंडर्ड क्वेश्चन होते हैं, बट कंपैरेटिवली इसमें लेवल थोड़ा कम है। और मोर ओवर 2 अगर आप मॉक टेस्ट सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो अगर कोई मॉक टेस्ट, कोई प्लेटफॉर्म का मॉक टेस्ट अगर सारे टॉपिक या सारे वेराइटीज़ का क्वेश्चंस कवर नहीं कर पा रहे हैं, तो दूसरे में आपको मिल जाएगा। इसलिए मिनिमम आपको यू सब्सक्राइब फॉर 2 मॉक टेस्ट फ्रॉम 2 प्लेटफॉर्म। ओके, नाउ कम्स रिवीजन पार्ट। यह हमारा स्ट्रैटेजी का 6 स्टेप्स, हमने ऑलरेडी 5 स्टेप्स देख लिए हैं, अब 6 स्टेप्स देखेंगे रिवीजन। रिवीजन क्यों ज़रूरी है? क्योंकि रिवीजन इसलिए ज़रूरी है बिकॉज हमारा जो ब्रेन होता है, या हमारा जो मेमोरी होता है, या हमारा जो कैपेसिटी होता है ब्रेन में स्टोरेज करने के लिए, ये डे बाय डे कुछ इन्फॉर्मेशन लूज करता रहता है। और दिस वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ओके, जिसको बोलते हैं हम रिटेंटिविटी, कि हमारा मेमोरी रिटेंटिविटी। सपोज कि मैंने आज कुछ चीज़ें पढ़ा, और हो सकता है कि किसी आदमी ने उसको 15 दिन तक याद रखे, किसी आदमी ने 7 दिन के बाद भूल जाए, किसी आदमी ने 6 महीने के बाद भूल जाए। तो इट डिपेंड्स अपॉन, इट वेरीज टू पर्सन टू पर्सन। टू कीप इट इन माइंड और टू कीप दैट थिंग इन आवर ब्रेन, वी हैव टू रिवाइज रेगुलरली। और मेरे हिसाब से एटलीस्ट वंस इन 15 days यू शुड रिवाइज। और रिवाइज करना क्या है, ऐसा नहीं कि पूरा YouTube वीडियो खोल के बैठ गए देख लिए, या पूरी किताब नहीं। जो आप नोट्स बनाए हो, उस नोट्स को आप रिवाइज कीजिए। सो फ्रेंड्स, हमारा इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है लास्ट फ्यू वर्ड्स। ये कहना चाहता हूँ, बीइंग एन एक्स सर्विसमैन, everybody has some social commitment, family obligation and other commitments also. Balancing all these, you have to start studying, and that too after a long gap, that is more than 15 years।
क्योंकि 15 साल पहले, कम से कम 15 साल पहले तो पढ़ना हमने छोड़ दिया होगा आप लोगों ने, बट पढ़ना तो पड़ेगा। एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पे कि अगर आपको अपने कैपेबिलिटी ऊपर कभी अगर डाउट आए तो एक बार, जस्ट एक बार आप अपना एकेडमिक पीरियड को याद कीजिए। आप जिस भी स्कूल में या जिस भी कॉलेज में या कहीं पे भी आप पढ़ाई कर रहे थे, मेरे हिसाब से तो एटलीस्ट आप 10 लोगों के अंदर आते ही होंगे। एंड यू मस्ट हैव एट दैट टाइम, आपके एकेडमिक पीरियड में बहुत बढ़िया डिवीज़न या ग्रेड होगा आपके पास। सो जब उस समय आप कर सकते थे, अभी क्यों नहीं कर पाएंगे? यू हैव द एबिलिटी एंड यू कैन डू इट। ओके, एक जाते जाते एक चीज़ और बताऊंगा, रिमेंबर 3D। ओके, व्हाट इज 3D? डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन एंड डिसिप्लिन। डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन एंड डिसिप्लिन। अगर ये 3 चीज़ आप मेंटेन रखते हैं, आप कोई भी एग्ज़ाम आप क्लियर कर सकते हो। लास्ट में फ्रेंड्स, एक चीज़ आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा, प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो। आई विल ऑलवेज ट्राई टू इम्प्रूव माई सेल्फ। अगर आप नेगेटिव कमेंट देते हैं तब भी आप प्लीज़ उसमें सजेशन या लिखिए कि क्यों आप नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं, सो दैट इन नेक्स्ट वीडियो आई विल ट्राई टू इम्प्रूव माई सेल्फ। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, जय हिंद।